दिल्ली में इस वक्त मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। पेपर लीक कानून से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है फास्ट ट्रैक कोर्ट से। 3 महीने में अब पेपर लीक जैसे गंभीर मसलों का फैसला होगा। पेपर लीक पर 10 साल की सजा होगी। ये सोर्सेस के हवाले से फिलहाल खबर सामने आ रही है। 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है नए कानून में। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, सरकार के रुख से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो 2024 का कानून है उसे और ज्यादा सख्त बनाया जाएगा, सजा को और बढ़ाया जाएगा, और सोर्सेस बता रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। बिल्कुल, जो अभी कैबिनेट के अंदर चर्चा हो रही है, जिस बिल पर जो मौजूदा पेपर लीक विरोधी कानून को रिप्लेस करेगा, उसमें कड़े प्रावधान किए गए हैं। खास करके जो संगठित तरीके से पेपर लीक किया जाता है, सरकार का ज्यादा जोर संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज पेपर लीक पर है, क्योंकि ऑर्गेनाइज पेपर लीक का असर कई स्टेट्स में होता है, पूरे देश भर में पड़ता है, जिसके चलते परीक्षा को दोबारा कराना पड़ता है। और अगर इंडिविजुअल मामला होता है तो उस पर्टिकुलर सेंटर पे या उस शहर में दोबारा परीक्षा कराई जाती है। तो ऐसे में सरकार जो ऑर्गेनाइज पेपर लीक को लेकर कड़े प्रावधान करने जा रही है। फिलहाल जो मौजूदा कानून है उसके अंदर ऑर्गेनाइज पेपर लीक के लिए 5-10 साल की सजा का प्रावधान है और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन अब सरकार 1 करोड़ या 10 करोड़? आनंद, 10 करोड़ जो मौजूदा कानून की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, मौजूदा कानून में 1 करोड़ का है, लेकिन सरकार अब जो नया कानून लाने जा रही है संशोधन के जरिए, उसमें जो सजा है उसको भी बढ़ाया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए उसको 10 साल करने की तैयारी है, और साथ ही साथ जो जुर्माना है उसको 10 करोड़ करने की तैयारी है। साथ ही साथ जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसको अब इस कानून के जरिए लीगल बैकिंग मिलेगी, यानी कि आप जैसे कोई पेपर लीक का मामला आता है उसकी सुनवाई सीधे डायरेक्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगी, डेली बेसिस पे सुनवाई। आनंद, आपको रोक रहा हूं क्योंकि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और आज वंदे मातरम बिल पेश किया जा रहा है। are permitted to state their grounds very briefly. Then the chair has no option but to put the question for the decision of the House. Accordingly, I will allow Dr. John Brittas, leader of CPM, and then Shriman Santosh Kumar P from CPI, to speak very briefly, 1 minute, followed by Minister who is introducing the bill. Additionally, the introduction of the bill can be opposed on the grounds of legislative competence or its accountability, its constitutionality. We should keep in mind that the parent bill of this amendment bill, Prevention of Insults to Honor, to National Honor bill, has already been cleared by this House in 1971. In 1971, this parent bill has been already cleared. I again request the honorable members to speak very briefly, as we will have full discussion at the consideration stage of the bill. Dr. John Brittas, for 1 minute. Sir, these are my objection at the introductory stage. Parliament cannot rewrite a constitutional settlement through ordinary legislation. The bill entirely relies upon Dr. Rajendra Prasad's statement, but it suppresses the most important sentences. It suppresses the crucial constitutional context in which the statement was made. Therefore, not a constitutional provision, not a resolution, not even an assembly decision. Parliament cannot elevate a presidential statement into constitutional test 76 years later. Thank you. It will, sir, 30 seconds. It will, in fact, dishonor the decision of the Constitutional Assembly and framers of the Constitution. The Constituent Assembly, after nearly 3 years of exhaustive deliberation, consciously refrained from placing national song and national anthem on the same constitutional footing. Had the framers intended both to enjoy identical legal consequences, they would have expressed. Thank you. So provided. So my contention is that they cannot manufacture patriotism and nationalism through a piece of legislation. Their intention is to polarize the society. Thank you. They should No, it's over. You have taken more time. Shriman Santosh Kumar P. Shriman Santosh Kumar P. Sir,
the intention is very clear at this point of time. This is to distract the public attention from the ongoing student agitation demanding Mr. Dharmendra Pradhan's resignation. You speak on the subject. No, you have to speak on the I am going subject. to speak to you. Please. So the intention is very clear. Sir, the core point is that Vande Mataram should unite Indians, it should not divide us. And the leaders of India's freedom movement, including Rabindranath Tagore, had understood this. That is why it was confined to 2 stanzas only. And these people who betrayed India's freedom movement, Confine yourself to Why can't you allow me? you are You are a opposing single the bill. minister. It's introduction stage. it's mine. Please. No. Those people who had betrayed You India. can oppose on the I am coming, constitutional sir, I am issue. coming to the point. No, Yes, come. those people who had betrayed India's freedom Please, movement. I'll move. No. You speak on the objections at this stage. Sir, the point is that Consider now, the stage, you can come to the point. now let me tell you, they're manufacturing, sir, I love Vande Mataram, but I oppose this because they are purposefully manufacturing a division between Rabindranath Tagore and Bankim Chandra Chatterjee. Thank you. Thank you, Honorable Minister. Nothing? Okay. You want to say something? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यह हमारे विपक्ष के विकास जी और जो भी विरोध कर रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि राष्ट्रीय जनगणमन के सम्मान ही सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय गीत को और यह गुमराह कर रहे हैं, इसे मैं अनुरोध करता हूँ कि Thank you. Now the question is that the leave be granted to introduce the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Sri Nityanand Rai. माननीय महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। You introduce the bill. Thank you. माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी जगह बैठे, बहस चलने दें। Please, the House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Monday, the 27th July 2026. तो देखिए, वंदे मातरम को लेकर जो बिल था, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन बिल, वो राज्यसभा में पेश कर दिया गया है और इसके बाद सदन की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निशांत, ऑपोजिशन की तरफ से एक बार फिर इसे लेकर ऑब्जेक्शन किया गया है और इस बिल में हुए संशोधनों को लेकर एक विवाद लगातार राजनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है। आने वाले वक्त में, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल तय कर चुकी है, इस बिल को पेश कर दिया गया है, इसे पास करवाने की पूरी कोशिश है। इसके बाद क्या बदलेगा, अगर आप ये हमारे दर्शकों को समझा सके। देखिए, पहले हमें अगर राइट फ्रॉम द स्क्रैच अगर शुरू करें, आज क्या हुआ है। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। ठीक है, ये क्या है, ये अमेंडमेंट किसमें है? ये अमेंडमेंट है नेशनल ऑनर एक्ट 1971। अब हमें यह समझना जरूरी है कि 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि दोनों को इक्वल दर्जा दिया जाता है, दोनों की रिस्पेक्ट की जाती है और दोनों को, जनगणमन हो या वंदे मातरम हो, दोनों को इक्वली ऑनर किया जाना चाहिए। लेकिन अब जो अमेंडमेंट बिल आया है, जब वो 1950 की घटना में यह कहीं पर मेंशन नहीं था कि वंदे मातरम की इंसल्ट पर क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऑलरेडी नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, उसमें नेशनल एंथम की अगर कोई इंसल्ट करता है तो उसको लेकर चीजें हैं, लेकिन वंदे मातरम पे इट गोज साइलेंट। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है 6 स्टैंजाज।
आपको याद होगा पंडित नेहरू ने जब वंदे मातरम को के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई थी जिसमें मौलाना आजाद थे, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर से उसमें सजेशन भी लिया गया था, तो 2 ही स्टैंजाज इंक्लूड किए गए थे क्योंकि उनमें बुत परस्ती नहीं थी। उसमें यह कहा जाता था कि उसमें किसी आइडल वर्शिप का जिक्र नहीं है, वो ब्यूटी का जिक्र है, नेचर का जिक्र है। तो अब इन सारी चीजों में तब्दीलियां आने वाली हैं ऐसा दिखाई देता है, इसीलिए विपक्ष इसका ऑपोजिशन कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। आमोद राय भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। 1937 के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले पूरे वंदे मातरम पर ऐतराज हुए और उसके बाद जो उस वक्त के तमाम बड़े नेता थे उन्होंने इस पर विचार किया और खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने यह माना कि जो बात के स्टैंजास हैं उससे एक समुदाय आहत हो सकता है, इसलिए शुरुआत के 2 छंद ही रखे गए। अब उसे न सिर्फ पूरा किया गया है बल्कि जनगण मन को जो कानूनी संरक्षण मिला हुआ है वो भी वंदे मातरम को दिया जा रहा है। ऑपोजिशन का रुख इस पर क्या नजर आ रहा है और आने वाले वक्त में क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, आनंद जरा बताएं। अपोजिशन का ये कहना है कि सरकार जो है वंदे मातरम के नाम पे यूनाइट करने की बजाय डिवाइड करना चाहती है। साथ ही साथ दूसरा तर्क अपोजिशन का ये है कि जो मौजूदा अभी छात्र आंदोलन चल रहा है, जो इस्तीफा मांगा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान का, उससे डाइवर्ट करने के लिए सरकार ये बिल लेकर आई है। तीसरी बात राजनीतिक वजह है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुस्लिम तबका जो है वंदे मातरम का विरोध करता है क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बुत परस्ती है, तो लिहाजा इन अपोजिशन पार्टीज के नेताओं को लगता है कि इससे जो अल्पसंख्यक वोट है अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो वो उनसे दूर जा सकते हैं। तो इसलिए विपक्ष का ही विरोध हो रहा है। इससे खास करके जो साउथ की पार्टीज है, जो लेफ्ट पार्टीज है, वो इसका ज्यादा विरोध कर रही है। तो ऐसे में सरकार का कहना है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि जैसे जनगण मन को कानूनी संरक्षण मिला हुआ है, अभी कोई जनगण मन के गायन में अवरोध उत्पन्न करता है या अपमान उसका करता है तो उसको सजा का प्रावधान है, उसको जेल जाने का प्रावधान है। तो यही कानूनी संरक्षण अब वंदे मातरम को भी मिलेगा। वंदे मातरम को लेकर सरकार ने कुछ समय पहले सभी स्टेट्स को एडवाइजरी भेजी थी। ये कहा था कि कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है जहां पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या फिर राज्यपाल रहते हैं तो वहां पे जनगण मन के साथ वंदे मातरम को भी बजाया जाए और पूरे 6 के 6 स्टैंजा गाए जाए। तो ऐसे में अपोजिशन को लगता है कि अगर हम इसका समर्थन करेंगे, खास करके लेफ्ट पार्टीज का, तो ऐसे में उनके जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है वो छिटक सकता है, वो नाराज हो सकता है, वो पूछ सकता है कि आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया। यही वजह है अपोजिशन इसका विरोध कर रहा है। और अब क्योंकि स्टैंजास जो हैं वो बढ़ गए हैं, 2 की जगह 6 छंद हो गए हैं, यानी पूरा वंदे मातरम इसकी बात की जा रही है। तो बहुत लोगों के मन में आनंद ये भी सवाल उठ रहा है कि पूरा वंदे मातरम हर किसी को कंठस्थ होना जरूरी तो नहीं है। लेकिन आप एक बात गौर करेंगे कि अब कहीं भी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जनगण मन के बाद वंदे मातरम अगर बजाया जाता है तो वहां पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई जाती है जहां पर वंदे मातरम के स्टैंजाज आते हैं, यानी कि जिसको कंठस्थ नहीं है वो वहां देख के पढ़ सकता है। जो गाइडलाइंस जारी की गई थी स्टेट्स को उसमें ये था ताकि जिनको याद नहीं है उनके लिए वहां पढ़ने की व्यवस्था की जाए। तो जहां भी वंदे मातरम का गायन किया जाता सरकारी कार्यक्रम में, वहां बड़ी सी स्क्रीन पे उसके स्टैंजाज आते रहते हैं, आप पढ़ के उसका गायन कर सकते हैं। तो सरकार का कहना है कि नियत होनी चाहिए, आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध ना करें। और ये जो वंदे मातरम है ये आजादी के पहले हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मतलब कंठस्थ होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको पूरा वंदे मातरम याद नहीं है तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी। ये अपमान पर है, ये बात ध्यान देने वाली। निशांत, कुछ आप भी ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए समीर, आज का जो बिल है प्राइमरली वो न सिर्फ इक्वल स्टेटस पे लाता है जो कि ऑलरेडी था, जो मैंने आपको 1950 में कहा था, लेकिन वो ये कहता है कि आप उसकी इंसल्ट करेंगे तो उसका पनिशमेंट भी होगा। अब इंसल्ट एक ऐसा टर्म है जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 1986 का केरला का कोर्ट है, केरला का एक केस है जिसमें केरलम अभी कह सकते हैं, तब केरल था, तब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बच्चे थे जिन्होंने नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग नहीं, नेशनल एंथम में दे केप्ट क्वाइट, उन्होंने गाया नहीं, दे केप्ट क्वाइट, उनको स्कूल से बाहर कर दिया गया। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इज नॉट एन इंसल्ट। ये दैट इज नॉट एन इंसल्ट। तो सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन बहुत सारी चीजें अभी आप बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर अगर कोई उसका विरोध करेगा, अगर कोई हंगामा करेगा, अगर कोई वॉकआउट करेगा तो उसको लेकर प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। लेकिन इफ यू गो साइलेंट तो उसमें बहुत सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल सही बात है। और राष्ट्रगान के लिए ये सारे नियम लागू होते हैं जहां तक अपमान का सवाल है और जहां तक उसके खिलाफ सजा का सवाल है। अब वो सारे नियम वंदे मातरम पर भी लागू होंगे। आनंद, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। निशांत, आप हमारे साथ बने रहें। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। केंद्र सरकार और सीजेपी की वार्ता इस वक्त जारी है। दिल्ली के वीपी हाउस में हो रही है ये बातचीत। बैठक में
जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह शामिल हैं। सरकार के 2 मंत्री, सीजेपी की ओर से कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से सौरभ दास और आशुतोष रंका इस बैठक में मौजूद हैं, सीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और विट्ठल भाई पटेल हाउस में सरकार और सीजेपी की वार्ता हो रही है। टीवी 9 संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम वीपी हाउस के अंदर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच में मीटिंग चल रही है। दरअसल ये मीटिंग जो है वो वीपी हाउस के कमरा नंबर 504 में चल रही है। सिक्योरिटी आप देख सकते हैं, इस वक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि कोई मीडिया कर्मी अंदर की तरफ ना जा सके। दरअसल इससे पहले पता चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग होनी है, जिसका वक्त तय हुआ था तकरीबन 12:30 बजे, और उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि जो मीटिंग का स्थान है, यानी कि जो प्लेस है, वो पूरी तरीके से बदल चुका है और वो अब ठीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बराबर में जो विट्ठल भाई पटेल हाउस है, यानी कि वीपी हाउस, उसके अंदर रखा गया है। और अब फिलहाल आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर पुलिस सिक्योरिटी 5वां फ्लोर है, और इस 5वें फ्लोर के रूम नंबर 504 के अंदर इस वक्त जेपी नड्डा, इसके अलावा जितेंद्र सिंह, साथ ही सौरभ दास कॉकरोच जनता पार्टी से, और उसके अलावा जो आशुतोष रंका है, वो इस मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार किन शर्तों पर या फिर किन मुद्दों पर चर्चा होती है और कितनी बात यहाँ पर एक दूसरे की मानी जाती है। हालांकि 20 तारीख को भी एक मीटिंग हुई थी जो कि जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी, लेकिन उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ तौर पर बोला कि वो किसी नेता के घर नहीं जाएंगे, बल्कि एक न्यूट्रल प्लेस होना चाहिए। और यही वजह है कि इसे जो वीपी हाउस का रूम नंबर 504 है, उसको एक न्यूट्रल प्लेस के तौर पर यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर इस वक्त दोनों के बीच में बैठक चल रही है। कल रात जो वांछुक हैं वो अपना अनशन तोड़ चुके हैं, और कुछ बातें थी जिन पर वो पूरी तरीके से सहमत थे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना था कि जब तक कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो अपना इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक यहाँ वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। और यही वजह है कि अब सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में बातचीत हो रही है। कैमरामैन कपिल के साथ जितेंद्र शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली। तो देखिए, ये बातचीत बहुत अहम है। दिल्ली के वीपी हाउस का सीधे रुख करते हैं। रजनीश रंजन हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, अब सरकार और सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बातचीत ऐसे वक्त में हो रही है जब सरकार ने खुद बहुत गंभीर रुख दिखाया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश में तमाम तरह का आश्वासन दिया गया है। सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रुख नजर आ रहा है, ये जरा बताएं। बिल्कुल, देखिए, बैठक खत्म हो गई है और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ पर लग गया है, और यहाँ से आपको तस्वीर दिखाते हैं। आगे सीजेपी के लोग मीडिया से बात कर रहे हैं, वो बताएंगे कि आखिर इस बैठक का नतीजा क्या हुआ है। ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री ने जो 2 ऐलान किए, कल सुबह उन्होंने ट्वीट किया और फिर कल देर रात को प्रधानमंत्री की ओर से जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले में सरकार कितनी गंभीरता से कदम उठा रही है। तो ऐसी स्थिति में जो आज ये बैठक हुई है, इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला है? क्या सीजेपी के लोग सोनम वांगचुक की तरह, जिस तरह से सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, क्या सीजेपी से जुड़े लोग अनशन तोड़ेंगे या फिर इस आंदोलन को खत्म करेंगे या फिर उनका आंदोलन जारी रहेगा? ये तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं। रजनीश, क्योंकि अभिजीत दीपके बार-बार एक बात कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं किया जाएगा। ये आंदोलन अभिजीत दीपके या फिर सोनम वांगचुक का नहीं था, ये आम स्टूडेंट्स का आंदोलन है। ऐसे में बात आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, अब अभिजीत दीपके हों या सीजेपी से जुड़े लोग हों या फिर जो छात्र सड़क पर हैं पिछले कई दिनों से, उनकी डिमांड एक ही डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। और इसके अलावा जो कुछ और बातें वो लोग कर रहे हैं, अपनी बातों पर वो अडिग हैं। आज की जो ये बैठक हुई है, दूसरी बैठक आप कह सकते हैं, हालांकि फॉर्मल ये पहली बैठक है। इसमें चीज़ें बहुत हद तक साफ होगी क्योंकि बड़े डेवलपमेंट कल हुए हैं। कल प्रधानमंत्री ने ऐलान किया, कल प्रधानमंत्री ने देर रात को वीडियो जारी किया। आज कैबिनेट में एजुकेशन रिफॉर्म को लेकर एक बिल लाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जब हो रही है तो इसके बाद अभिजीत दीपके, सीजेपी और छात्रों का रुख क्या है? क्या अभी भी वो अपनी बातों पर अडिग हैं या फिर उनको लगता है कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से ले रही है? बिल्कुल, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है
खत्म कर रजनीश, देना एक चाहिए। और ये बहुत तमाम इंपॉर्टेंट चीजें। बात है, क्योंकि दो बड़ी डिमांड्स थी। एक तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ही मांग रहे थे सीजेपी के तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स और सपोर्टर्स, और दूसरी बड़ी बात यह थी कि नीट पेपर लीक के बाद जिन छात्रों ने खुदकुशी की है उनके परिवार वालों को मुआवजा मिले, और सरकार इसके लिए तैयार नजर आ रही है। इसे लेकर भी आश्वासन दिया गया है, यानी बड़ी दो मांगों में से एक तो मान ली गई। देखिए, अब जो जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, 3 मांगों को लेकर सीजेपी के दोनों प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री के पास आए हैं। उनमें सबसे पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। दूसरा, जो आपने कहा कि जिन छात्रों ने खुदकुशी की है उनको कंपनसेट किया जाए, उनके परिवार के लोगों को एक्स ग्रेशिया राशि दिया जाए। और तीसरा, उस दिन जो आंदोलन के दौरान और प्रदर्शन के दौरान जिन छात्रों को के ऊपर केसेस किए गए हैं, जिन छात्रों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है, मुकदमा दर्ज किया गया है, उन पर वो तमाम मुकदमे वापस लिए जाएं, और जिन पुलिस के लोगों ने ये सारे काम किए हैं उन पर कार्रवाई हो। तो मोटा मोटी ये 3 मांग लेकर वो आए थे। लेकिन अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन तीनों मांगों को सरकार ने किस तरीके से लिया है और उन तीनों मांगों को लेकर सरकार का रुख क्या है। अगर सरकार उन्हें आश्वासन देती है तो ऐसा लगता है कि आंदोलन को लेकर कुछ सकारात्मक खबरें सामने आ सकती है, लेकिन अगले कुछ मिनटों में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी कि सरकार के साथ बैठक के बाद सीजेपी का अगला रुख क्या होने वाला है। अगला रुख क्या होगा ये थोड़ी देर में साफ होगा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो रजनीश रंजन हमारे संवाददाता दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल हाउस से दे रहे हैं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से लगा हुआ ये विट्ठल भाई पटेल हाउस है, जहां पर सीजेपी के प्रतिनिधियों और सरकार के दो मंत्रियों के बीच हुई है वार्ता। जानकारी के मुताबिक तकरीबन 1 घंटे तक ये बातचीत चली है, 1 घंटे तक ये वार्ता हुई है। बैठक खत्म हो चुकी है, नतीजा क्या निकला ये जानने के लिए इस वक्त हर कोई उत्सुक है, क्योंकि यह बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात 12 बजे के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है और उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की बात कही गई है। साथ ही साथ एक मसौदा तैयार किया गया है जो कि 2024 का कानून था पेपर लीक को लेकर, परीक्षा को लेकर, उसको कैसे और ज्यादा सख्त बनाया जा सके। प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का जिक्र किया कि मसौदा उनकी टेबल पर पहुंच चुका है। कैबिनेट मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसमें उस मसौदे पर अंतिम मुहर लग सकती है। ये तमाम जानकारियां एक तरफ, और दूसरी तरफ ये देखिए, अब तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपको दिखा रहे हैं सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ इस वक्त सरकार की जो बैठक हुई है थोड़ी देर पहले। अब यह बैठक खत्म हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 1 घंटे तक सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई है। जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा सरकार की तरफ से मौजूद रहे, सीजेपी की तरफ से उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे। और फिलहाल रुख में क्या कोई बदलाव आया है, क्या कुछ बात बनी है, क्या गतिरोध खत्म हुआ है, क्या ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि बैठक में हुआ क्या है अभी इसकी जानकारी ना तो सरकार की तरफ से दी गई है, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान सामने आया है। तो इंतजार बस इस बात का है कि आखिर इस मीटिंग में क्या हुआ, नतीजा क्या निकला है, ये पता चल पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, क्या जो सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अभी भी अंदर मौजूद हैं और जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी वहीं पर हैं, या फिर जो मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री वहां पर मुलाकात के लिए पहुंचे थे, वो निकल चुके हैं वहां से? देखिए, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़ी है, आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी है जेपी नड्डा की और उनका पूरा कॉन्वॉय है, प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हैं, वो यहाँ पर लग चुकी हैं और कभी भी वो बाहर निकल सकते हैं। और आमतौर पर देखा ये जाता है कि जब बैठक होती है, चाहे पिछली बार 20 जुलाई को सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ जब जेपी नड्डा अपने आवास पर मिले थे, तो उसके कई घंटों के बाद सरकार की ओर से एक छोटा सा ब्रीफ नोट बयान के तौर पर जारी किया गया था। तो आज भी सरकार तुरंत बयान दे देगी ऐसा इस बात की संभावना कम है। लेकिन सीजेपी के लोग जो 2 लोग हैं, सौरभ दास और आशुतोष रांका, ये दोनों जब बाहर आएंगे तो निश्चित तौर पर मीडिया से बातचीत करेंगे, क्या उनकी बात हुई है और इस बातचीत के बाद उनका अगला जो रुख है, उनकी आगे की स्ट्रेटेजी है, आगे की जो
प्लानिंग है वो किस तरह की रहने वाली है, उस पर वो अपनी जानकारी दे सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये दोनों पहले यहाँ से जंतर मंतर जाएं अभिजीत दीपके के साथ, और वहाँ पर वो मुलाकात करेंगे। और भी कई लोग हैं जो अलग अलग संगठन के लोग वहाँ पर मंच पर बैठते हैं, जो मिलकर एक सामूहिक रणनीति बनाते हैं, आगे का कोर्स ऑफ प्लान वो तय करते हैं। उन लोगों के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद कोई बयान जारी कर सकते हैं। तो अभी तस्वीर जो है वो थोड़ा समय लगेगा पूरी तरह से साफ होने में, लेकिन इतना तय है कि सरकार और सीजेपी के साथ ये बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई है, काफ़ी देर तक ये बैठक चली है, लेकिन बैठक का नतीजा क्या हुआ है इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ठीक बात है रजनीश, और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और इस बैठक के दौरान सौरभ दास और आशुतोष रंका, ये दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि लगातार सरकार के मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 1 घंटे तक तकरीबन ये मीटिंग चली है, और इसमें हुआ क्या है, नतीजा क्या निकला है, ये जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। रजनीश हमें सारी जानकारी दे रहे हैं, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, सरकार की कोशिश क्या नजर आ रही है, क्या मंशा सरकार सामने रखने की कोशिश कर रही है इस मीटिंग के जरिए सीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स को, और सीजेपी के तमाम जो सपोर्टर स्टूडेंट्स हैं जो कि इस आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, उनके लिए क्या आश्वासन, क्या भरोसा है सरकार के पास? जी देखिए, सरकार बात तो कर रही है सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ, लेकिन इसके जरिए मैसेज ये देश भर के युवाओं को और छात्रों को दे रही है कि सरकार आपके कंसर्न्स को लेकर, आपकी चिंताओं को लेकर गंभीर है, और यही वजह है कि सरकार लगातार बातचीत के लिए कोशिश कर रही है, और सरकार बात कर भी रही है। हमें जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा की संभवतः एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो सकती है, जिसमें वो अभी जो उनकी बातचीत हुई है सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ वो गृह मंत्री को बताएंगे, और उसके बाद फिर सरकार का आगे क्या कदम उठाना है उसको लेकर सरकार की रणनीति तय होगी। लेकिन इतना जरूर है, सरकार ने पिछले 24 घंटे में जो कदम उठाए हैं, सरकार को लगता है कि अब धरने को जारी रखने का कोई मतलब नहीं, अब धरना खत्म कर देना चाहिए। जब सोनम वांगचुक अपना आंसर खत्म कर चुके हैं, सरकार ने कई फैसले ले लिए हैं, तो ऐसे में सरकार को उम्मीद है कि सीजेपी के लोगों को भी सरकार की बात माननी चाहिए, सरकार ने जो कदम उठाया है उसको स्वीकार करना चाहिए, अपने धरने को खत्म करना चाहिए। आनंद, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि अब सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद सीजेपी पर एक तरह का दबाव है कि वो भी धरना खत्म करे, क्योंकि सरकार भी कई कदम आगे बढ़कर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस मुद्दे को लेकर वो कितना गंभीर है? देखिए, सरकार को लगता है कि इस धरने के पीछे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो पीछे सपोर्ट कर रही हैं, तो ऐसे में सरकार कह रहा है कि अगर छात्र नेता जो हैं या फिर जो लोग इस सच में इस मामले इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, धरने को लीड कर रहे हैं, अगर उनकी चलेगी तो ये धरना खत्म हो सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति करना चाहती हैं, ऐसे लोगों को और उकसाना चाहती है, तो फिर हो सकता है कि धरना लंबा खींचे। लेकिन ये काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि अभी जो मीटिंग हुई है इसमें सीजेपी की तरफ से सरकार के प्रस्ताव पे क्या जवाब दिया गया है। अगर सीजेपी सरकार के प्रस्ताव पे तैयार हो जाती है, सरकार के कदमों से संतुष्ट हो जाती है, तो ये उम्मीद की जा रही है कि धरना खत्म हो सकता है। लेकिन इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक फेस सेविंग चाहिए। सरकार का कहना है कि जितना हम आगे आ सकते थे हम आए हैं, हमारी कोशिश सिस्टम को दुरुस्त करने की, परीक्षा प्रक्रिया को ठीक करने की है, हम उसको कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीजेपी को भी ये बताना होगा कि अगर अपना धरना वापस लेते हैं तो जो एक मुख्य मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसका क्या हुआ। तो जाहिर तौर पर दोनों तरफ अभी और बातचीत होगी, दोनों अपने अपने वापस कैंप में जाएंगे, जहां सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की फिर से अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। तो वह दूसरी तरफ सीजेपी के जो प्रतिनिधि है वो अपने जो लोगों के पास जाएंगे, उनसे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद। लेकिन आनंद, अभी सबसे बड़ा गतिरोध का विषय यही नजर आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा डिमांड किया जा रहा है सीजेपी की तरफ से, और आप देखिए इसे पूरी तरह से इको करता हुआ ऑपोजिशन भी नजर आ रहा है। एक तरफ हम संसद में देख रहे हैं कि यही सबसे बड़ा गतिरोध का आधार बना हुआ है, ऑपोजिशन लगातार हंगामा कर रहा है। अभी हमने देखा राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जब वंदे मातरम पर बिल पेश किया गया, उस दौरान भी कहा गया कि भाई ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश है, और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी हम मंजूर नहीं करेंगे, पहले इस्तीफा हो उसके बाद चर्चा होने दी जाएगी। तो ऑपोजिशन और सीजेपी का रुख इस एक मांग को लेकर बिल्कुल एक नजर आ रहा है। आनंद जी बिल्कुल, लेकिन सरकार को ये लगता है कि हम जो राजनीतिक लोग हैं, जो अपोजिशन पार्टी है, उनसे तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो हमारी पिच पे है, यानी कि वो भी राजनीति कर रहे हैं, हम उनका जवाब देंगे। लेकिन सरकार की चिंता जो है ये छात्रों को लेकर है, जो धरने में बैठे हुए। उनको ये लगता है कि छात्र जो है
ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि जो देश अभी केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो छात्रों की नहीं सुन रही है, छात्रों के खिलाफ है, या फिर खास करके जो लाठीचार्ज जो उसके बाद से सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे है, जिसके बाद सरकार ने पिछले 24 घंटे में कई कदम उठाए हैं। तब सरकार को लगता है कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष उनसे हम निपट लेंगे, राजनीतिक तौर पर हम उनसे सियासी लड़ाई अपनी लड़ लेंगे, लेकिन सरकार इनको संतुष्ट करना चाहती है, उन छात्रों को जो इस आंदोलन का हिस्सा है, जो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है आनंद, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहें और विट्ठल भाई पटेल हाउस का भी हम रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि 1 घंटे तक बैठक चली, ये खबर आ गई, यानी इसका मतलब ये हुआ कि बैठक खत्म हो गई है, और अगर बैठक खत्म हो गई है तो इसका नतीजा क्या निकला ये अभी तक बताया क्यों नहीं जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए समीर, मैं इस वक्त उसी कमरा नंबर 504 के बाहर मौजूद हूँ जहां पर ये मीटिंग हुई। तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच में। और अब इसका नतीजा क्या हुआ, हालांकि ये तो थोड़ी देर बाद पता चले, क्योंकि सबसे पहले जो कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सौरभ दास हैं, जो आशुतोष रांका है, वो यहाँ से निकल चुके हैं, जबकि जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं जेपी नड्डा और इसके अलावा जितेंद्र सिंह, वो अभी भी बताया जा रहा है कि रूम नंबर 504 के अंदर ही मौजूद हैं। तो थोड़ी देर बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार क्या बीच का समाधान निकाला गया दोनों तरफ से। लेकिन आप जितेंद्र ये कह रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां से निकल गए हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो निकल गए वहां से? जी बिल्कुल, देखिए सीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे कैमरे के अंदर कैद है, वहां से निकलते हुए उनको देखा गया। इसके अलावा जो केंद्र सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह है, बताया जा रहा है कि वो ठीक है जितेंद्र, रजनीश रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश, आपके पास क्या जानकारी है? जितेंद्र तो बता रहे हैं कि सौरभ दास और आशुतोष रांका वहां से निकल गए, तो मीडिया से उन्होंने बात नहीं की क्या? देखिए, इस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के भीतर हूं और यहां पर इंतज़ार किया जा रहा है कि सरकार की ओर से या सीजेपी की ओर से कोई भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर आएँ और मीडिया को बताएं कि बातचीत का नतीजा क्या रहा है। बाकायदा सीजेपी की ओर से यहां पर मीडिया को जानकारी दी गई है कि आप लोग अपने कैमरे लगा लें और किसी भी वक्त यहां पे बयान दिया जा सकता है, यानी कि मीडिया बाइट, साउंड बाइट यहां पर हो सकता है। तो इस वक्त इंतज़ार ही किया जा रहा है। दरअसल जो बैठक है वो इसके पास वाली बिल्डिंग बीपी हाउस में हो रही थी और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, तो हो सकता है कि वो यहाँ आकर बयान दे या फिर कुछ जो सुरक्षा कर्मी हैं वो और देखिए बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की, जिस बारे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में भी इस बात का जिक्र किया था। यानी आसान शब्दों में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2024 में जो कानून मोदी सरकार ने बनाया था, अब उसमें संशोधन करके उस कानून को और ज्यादा कड़ा और ज्यादा सख्त बना दिया गया है। पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में इस बात का जिक्र किया था कि मसौदा उनके पास पहुंच चुका है और जो आज कैबिनेट मीटिंग होगी, दोपहर 1 बजे ये कैबिनेट मीटिंग होनी थी, उसके थोड़ी देर बाद मीटिंग शुरू भी हो गई थी और अब जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक संशोधन विधेयक को मिल गई है मंजूरी। आनंद प्रकाश पांडे का एक बार फिर मुझे रुख करना होगा। आनंद, यानी अब इस बात का रास्ता साफ हो गया है कि सोमवार को यह बिल पेश किया जाए संसद में। जी बिल्कुल, अभी कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो मौजूदा कानून है उसको और कड़ा करने को लेकर जो संशोधन विधेयक लाया जा रहा है उसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इसमें जो ऑर्गेनाइज पेपर लीक है उसके लिए सजा और जुर्माने को बढ़ाया गया, साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए ये एक समय सीमा तय करने की बात कही गई ताकि 3 महीने के अंदर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को पेपर लीक से जुड़े हुए मामले जो है उनमें उनको फैसला देना होगा। और ये जो बिल है, संशोधन विधेयक है, ये सोमवार को संसद में लाया जाएगा, जिसे पारित कराया जाएगा ताकि जल्द से जल्द ये जो विधेयक है ये कानून बन सके और ताकि भविष्य में जो भी पेपर लीक अगर होते हैं तो वो फिर इसी कानून के तहत उनसे डील किया जाएगा। एजेंसी जांच करेंगी, उनका ट्रायल जो है और फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा, 3 महीने में सुनवाई पूरी करके सजा देनी होगी। और साथ ही साथ जो जुर्माना है, अभी जो मौजूदा जुर्माना है ऑर्गेनाइज पेपर लीक के लिए उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान है। और साथ ही साथ जो सजा है, सजा का समय है उसको भी बढ़ाने का प्रावधान किया गया ताकि एक सरकार जो है एक डर पैदा करना चाहती है ताकि एक ऑर्गेनाइज पेपर लीक न किया जाए। सरकार कह रहा है कि इंडिविजुअल मामलों में अगर पेपर लीक कोई करता है, कोई एक व्यक्ति करता है तो उसका असर या तो उसी शहर तक सीमित रहता है या फिर बहुत छोटे
एरिया में। लेकिन छात्रों को दिक्कत तब होती है जब ये ऑर्गेनाइज होता है, यानी कि जिसका असर कई राज्यों में होता है, कई शहरों में होता है, जिसके चलते पूरी परीक्षा कैंसिल करनी पड़ती है और लाखों छात्रों का जो भविष्य है वो परेशानी होती है उनको। ऐसे में सरकार का कहना है कि जो ऑर्गेनाइज पेपर लीक है उसको और उसके खिलाफ और कड़े कानून लाने के लिए ये संशोधन किया गया है और सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द इस विधेयक को कानूनी शक्ल दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश की जाए तो अब पहली बड़ी बात ये होगी, पहला बड़ा चेंज ये होगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मामले चलेंगे, 3 महीने के अंदर अंदर सजा मिलेगी। ये भरोसा दिलाया गया है। 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान किया गया है ऑर्गेनाइज्ड पेपर लीक के मामलों में। हालांकि शाम 4 बजे सरकार इस मसले को लेकर पूरी जानकारी देश के साथ करेगी साझा।